गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा वीडियो है, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज रिलेटेड टू लिमिट्स। ये जो हमारी कुछ आइडेंटिटीज हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, इनके अलावा भी कुछ और इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज हैं, उनको हम नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा उनमें डिस्कस करेंगे। बट इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस दिस 4 इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज। अगर आपका ये जो है आइडेंटिटीज है, इनका रिजल्ट आपको अच्छे से याद रखना है। इनको हम देखेंगे कि इनका रिजल्ट जो है वो क्या होगा। आफ्टर दैट इन आइडेंटिटीज पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम सोल्व करेंगे। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट वन इज लिमिट x टेंड्स टू a। फर्स्ट वन इज लिमिट x टेंड्स टू a। दिस इज a means any constant value, and x to the power m minus a to the power m upon x to the power n minus a to the power n मीन्स यहां पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि x में से a माइनस हो रहा है और ये जो है दोनों की पावर सेम है। यहां भी x में से a माइनस हो रहा है और दोनों की पावर सेम है। एंड जो माइनस हो रहा है दैट इज लिमिट x टेंड्स टू a, यहां पे a। सो यहां पे x में से माइनस हो रहा है a, यहां भी x से माइनस हो रहा है a। So देखिए, if we put x equals to a here, then we get a to the power m minus a to the power n upon, यहाँ x की जगह a पुट करें। देखिए यहाँ x की जगह a पुट किया, so a to the power m minus a to the power m। यहाँ x की जगह a पुट किया minus a to the power n, so we get 0 by 0 value। Okay, we get 0 by 0 value। So apply DL rule। अगर हम DL rule यहाँ अप्लाई करें, then limit, so it can be written as limit x tends to a, okay, differentiate x to the power m। So differentiate x to the power m is constant, so we know that differentiation of x to the power n equals to n x to the power n minus 1। so यहां हमारे पास डिफरेंशिएशन होगा m x to the power m minus 1। So this value, this is the differentiation of x to the power n। So ये value तो हमारा इसका differentiation हो जाएगा। So we will write m x to the power m minus 1 and then this negative symbol, so this is the negative symbol। देखिए ये जो m minus 1 है, this is in the power of x। Okay, now differentiate of a to the power m। ये जो a to the power m है उसका differentiate करेंगे। Since a is constant, so any power of constant, a हमारा constant है, m उसकी पावर है कोई, so constant की कोई भी पावर हो, result will be constant। so a to the power m है वो क्या होगा, constant होगा। अब हमें constant का differentiation करना, so we know that the differentiation of constant is 0। so यहां हम लिखेंगे 0 upon, now differentiation of x to the power n, that is n x to the power n minus 1। जैसा हमने x to the power n किया, सेम x to the power n का होगा माइनस, ओके, a is constant, so a to the power n is constant, so differentiation of constant is 0। so now this value can be written as equals to limit x tends to a, okay, n x to the power n minus 1 upon n x to the power n minus 1। so this can be written as, अब हम यहां पे पुट कर देंगे x की वैल्यू क्या, a पुट कर देंगे। so m a to the power m minus 1 upon n a to the power n minus 1। नाउ देखिए बेस हमारा सेम है, so ये जो है, since we know that x to the power m upon x to the power n, so this will be x to the power m minus n। ये जो पावर है यहां ऊपर जाएगा और किसमें हो जाता है, माइनस में। so ये आइडेंटिटी हम यहां अप्लाई करें, so this can be written as, देखिए ये m by n, ये तो हमारा बाहर है, this is m by n and a to the power m minus 1, okay, इसमें से माइनस करना है this power, so minus n minus 1। now this can be written as m by n a to the power m minus 1 minus n and minus into minus plus 1, so minus 1 and plus 1 cancel out, so here we will get m by n a to the power m minus n। so this is the solution of this one। so ये जो आइडेंटिटी है हमारी, this will be m by n
and a to the power m minus n. ओके, जैसे अब हम बात करते हैं इस आइडेंटिटी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन, जैसे अगर क्वेश्चन हो फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 2, ओके, x to the power 7 minus 2 to the power 7 upon x to the power you can say 3 minus 2 to the power 3. So यहां पे अगर हम कंपेयर करें विद दिस वन, सो लिमिट x टेंड्स टू a, सो देखिए लिमिट x टेंड्स टू 2, सो वैल्यू ऑफ a इज 2, ओके, देन x to the power n, so x to the power 7, so n is 7, this is minus a to the power n, so a to the power n upon x to the power n, so you can say n equals to 3. Okay, so this can be written as m by n. M by n means 7 by 3. Okay, a means 2 to the power m minus n, so 7 minus 3, so 7 by 3 and 2 to the power 4, so 2 to the 4, 4 to the 8 to the 16, so you can say 7 into 16 by 3, 7 6 the 42, carry 4, सो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा. ओके, सो इस तरीके से हम जो है आइस को सोल्व करते हैं यूजिंग दिस आइडेंटिटी. अदरवाइज यहां अगर हम इस क्वेश्चन में डायरेक्ट डीएल रूल अप्लाई करें, ये तो हमने देखिए इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए सोल्व किया है. अदरवाइज अगर हम डायरेक्ट डीएल रूल अप्लाई करें यहां, सो देखिए यहां अगर हम पुट करें, सो x की जगह 2 पुट किया, सो 2 to the power 7 minus 2 to the power 7, सो न्यूमरेटर में 0 अपॉन यहाँ x की जगह 2 पुट किया, सो 2 to the power 3 minus 2 to the power 3, so 0, so it is the form of 0 by 0. so apply, okay, DL rule. DL rule अगर हम अप्लाई करें, so it can be written as limit x tends to 2, so x to the power 7 का डिफरेंशिएशन that is 7x to the power 6 minus 2 to the power 7 is constant, 2 to the power 7 is constant, so constant का differentiation that is 0, a negative symbol, and differentiation of 2 to the power 7 means constant का differentiation is 0 upon x to the cube का differentiation 3x square minus this is also constant, so इसका differentiation 0, so here we get limit x tends to 2, 7 by 3 and x 6, ये पावर ऊपर जाएगा, देन 6 minus 2, so you can say 4, ये हमारा हुआ. अब हम पुट करेंगे x की जगह 2, so 7 by 3, okay, and 2 to the power 4, so 7 into 16 by 3, so this is the result. so हमें सेम रिजल्ट मिलता है बाय डीएल रूल. so ये हमारा फर्स्ट जो आइडेंटिटी थी उसको एंड उस पे बेस्ड क्वेश्चन था. अब हम बात करते हैं हमारी जो सेकंड आइडेंटिटी है. ओके, नाउ वी विल डिस्कस द सेकंड आइडेंटिटी, दैट इज सेकंड वन इज लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड a टू द पावर x minus 1, ओके, अपॉन x. सो पुट हियर x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 अगर हम पुट करें, सो a टू द पावर 0 minus 1 अपॉन 0, एंड वी नो दैट if power is 0 of any constant, then value will be 0. Value will be 1. We know that if power is 0 of any constant, यानी किसी की भी पावर अगर 0 है, then उसकी वैल्यू क्या होगी, 1. So 1 minus 1 upon 0. So we get 0 by 0. So यहां भी हम क्या करेंगे, DL रूल अप्लाई करेंगे. So apply DL rule. DL रूल अप्लाई करते हैं, then limit x tends to 0, okay, a to the power x. So since we know that the differentiation of a to the power x, a is constant and this is x, so differentiation is a to the power x log a. So this can be written as a to the power x log a. This is minus, ये negative symbol, and 1 का differentiation we know 0 upon differentiation of x, that is 1. So it can be written as limit x tends to 0, a to the power x log a, because minus 1 अगर हम करेंगे तो सेम वैल्यू मिलेगा एंड डिवाइड 1 से भी हमें सेम वैल्यू मिलेगा. नाउ पुट x इक्वल्स टू 0, सो x की जगह 0 पुट कर देंगे, a to the power 0 and log a, and we know that the value of a to the power 0 is 1, so 1 into log a, so here we will get log a. So this is the solution of, or you can say
the value of this quotient. So this is log A. Here base is E. Here base is E. Now come to the third one. जो हमारी थर्ड आइडेंटिटी है, लिमिट x टेंस टू 0, okay, log, this is third one, 1 plus x upon x. Okay, so put x equals to 0. अगर हम x equals to 0 put करते हैं, then we get log 1 plus 0 upon x की value, put x equals to 0, so we get log 1, sorry, 1 plus 0 is 1, so log 1 upon 0, and we know that the value of log 1 is 0. Since log 1 की जो value है वो क्या होती है 0, so log 1 equals to 0 and by 0. So ये हमारा जो है 0 by 0 फॉर्म है, undefined value है. So apply DL rule, apply DL rule, then we get limit x tends to 0, differentiate of this, since we know that the differentiation of log x is 1 upon x. Okay, so differentiation of log 1 plus x. So compare कीजिए, यहां पे x है एंड यहां पे क्या है 1 plus x, so 1 upon x. so यहां x देखिए, x यहां x था तो यहां x, यहां 1 plus x है, so 1 plus x. अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें, सो x की जगह हमारे पास क्या है 1 plus x, so differentiation of 1 plus x, so now 1 upon 1 plus x, and now differentiation of 1 is 0 plus, and differentiation of x is 1, so this is equal to 1 upon 1 plus x. This is the differentiation of log 1 plus x, so this can be written as 1 upon 1 plus x, okay, divided by, देखिए इसका डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय इसका डिफरेंशिएशन, so differentiation of this is 1, so now this can be written as limit x tends to 0, 1 upon 1 plus x डिवाइड हमारा, अगर हम किस कोई भी वैल्यू है उस वैल्यू को 1 से डिवाइड करते हैं, देन वी गेट द सेम वैल्यू, वी गेट सेम वैल्यू. नाउ पुट x इक्वल्स टू 0, देखिए इसको हमने डिवाइड किया 1 से, देन वी गेट दिस वन. अब इसमें हम x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, so 1 upon 1 plus 0, so here we get 1. So this is the differentiation of this is the value of this question, this is equal to 1. अब हम जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं. फोर्थ वन इज limit x tends to 0, okay, e to the power x minus 1 upon x. So if we put x equals to 0, then e to the power 0 minus 1 upon x की जगह 0, so e to the power 0 is 1, 1 minus 1 upon 0, so 0 by 0 form. Okay, now apply DL rule. अगर हम DL rule अप्लाई करते हैं, then we get limit x tends to 0. Okay, differentiation of e to the power x, so differentiation of e to the power x is e to the power x minus this negative symbol. Now differentiation of 1 का differentiation 0 upon, because 1 is constant, so differentiation of constant is 0 upon x, so x का differentiation 1. So this can be written as limit x tends to 0 e to the power x. Now put x equals to 0, so we get e to the power 0 means 1. So this is the value of this one, so 1. ये हमारी 4 important identities हैं. Okay, ये इन identities को आप either you can use in the question or you can apply DL rule. Okay, so अब हम कुछ और important जो लिमिट्स में कंसेप्ट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं. देखिए लिमिट, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए 1 upon 0, okay, 1 upon 0 is infinity. Now 0 by 0, this is undefined. Okay,
अनडिफाइंड, एंड 1/0 दैट इज इंफिनिटी। मीन्स कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमिनेटर में हमारे पास कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है एक्सेप्ट 0, 0 के अलावा हमारे पास कोई भी डिफाइंड न्यूमेरिकल वैल्यू है इन द न्यूमिनेटर, और हमारे पास जो डेनोमिनेटर है उसमें 0 है, जैसे 2/0, ओके, 100/0, -5000/0, या √2/0, 1.7/0। सो हमारे पास इन ऑल दीज वैल्यूज, न्यूमिनेटर में हमारे पास कोई डिफाइंड वैल्यू है, ओके, और डेनोमिनेटर में हमारे पास 0 है। सो ऑल दीज आर इक्वल टू इन्फिनिटी, ओके, ऑल दीज आर इक्वल टू इन्फिनिटी। बट 0 अगर हमारे पास न्यूमिनेटर में है, कहां है, न्यूमिनेटर में, और डेनोमिनेटर में हमारे पास कोई भी वैल्यू है, सो उसका रिजल्ट क्या होगा, 0। जैसे हम बात करेंगे, सो 0/√2, 0, ओके। सो ये हमारे पास कुछ डिफरेंस है, समझने का कंसेप्ट है। अब देखिए, इन्फिनिटी बाय एनी नंबर, बाय एनी डिफाइंड नंबर, सपोज 2, सो यहां हमें रिजल्ट मिलेगा इन्फिनिटी। बट कोई भी, यहां पे कोई भी नंबर हो सकता है, 2, 5, 8, -2, ओके, सो वी गेट इन्फिनिटी, या 5। बट अगर हमारे पास न्यूमिनेटर में कोई नंबर है एंड यहां पे हमारे पास क्या है, इन्फिनिटी है डिवाइड में, देन दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज 5 डिवाइडेड बाय infinity, okay, 5 divided by infinity can be written as like this, and this infinity can be written as 1/0, infinity can be written as 1/0, okay, या आप ऐसा कीजिए, यहां infinity, now this can be written as 5 divided by 1/0, so 5 divide हमारा multiply में convert हो जाएगा, so 0/1, so 5 into 0 we get 0/1, so 0 means कोई भी हमारा नंबर है, ओके, उसके डिवाइड में इन्फिनिटी है, नंबर के डिवाइड में इन्फिनिटी मींस 0, बट इन्फिनिटी के डिवाइड में कोई नंबर है, देन वैल्यू विल बी इन्फिनिटी, ओके। वन मोर थिंग, देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड 1/x, ओके, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1/x, दिस इज इक्वल टू, यू कैन से x की जगह हमें क्या पुट करना है, 0, सो 1/0 इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, ओके। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड 1/x, सो यहां पे देखिए 1/x की जगह मैंने पुट किया इन्फिनिटी, सो दिस कैन बी रिटन एज 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, so 1 divided by infinity can be written as 1/0, so 1 into 0/1, that is 0/1 means 0. so देखिए, value of this is infinity and value of this is 0, okay, these are two important concept। मतलब अगर हमारे पास x डिवाइड में है, so x जितना छोटा होता जाएगा 0 की ओर, वो जो है मूव करेगा, देन जो वैल्यू है हमारी वो लिमिट की तरफ मूवमेंट हो। बट इफ लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, जब x इन्फिनिटी की ओर होगा, देन 1/x जो है वो क्या होगा, 0। अगर इसी को हम देखें, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ओके, एंड x, सो दिस इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और हम बात करें लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पे x, सो दिस इज इक्वल्स टू 0। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जो कि हमारे आगे के जो हमारे लिमिट के क्वेश्चंस हैं उनमें यूज होंगे। दिस इज 1, सेकंड वन, थर्ड वन एंड फोर्थ वन, ओके। सो दीज आर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि हम हमारे जो आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनमें इनको डिस्कस करेंगे। ये कुछ क्वेश्चंस हैं 1 to 7, इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। दिस क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन दिस आइडेंटिटी। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट वन इज, ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट x टेंड्स टू 4 x cube
माइनस 64 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16, एक्स स्क्वायर माइनस 16. So this can be written as limit x tends to 4, okay, x cube minus 64. This can be written as 4 cube. This can be written as 4 cube upon x square minus 16 can be written as 4 square. So this question, now this question is similar to this one. If we compare this one and this one, then we find value of a is 4, value of a is 4, value of n is 3, and value of n is 2, value of n is 2, and this is equal to m by n. So you can say m by n means 3 by 2, m is n and n is 3, n is 3 and n is 2. So m by n, a to the power m minus n, and value of a is 4. So 4 to the power n minus n. So 3 minus 2. So this can be written as 3 by 2 and 4 to the power 3 minus 2 means 1. So into 4 और ये हमारा कैंसिल हो गए 2 times we get 6. Okay, so ये हमारा सॉल्यूशन है by apply this identity. Okay, लेकिन अगर इसे हम डीएल रूल से देखते हैं देन सबसे पहले तो हम क्या करेंगे इसमें, अगर हम डीएल रूल से देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है वैल्यू पुट करेंगे इसमें. सो ये तो हमारा हुआ यूज ऑफ दिस आइडेंटिटी. अब इसी क्वेश्चन को हम डीएल रूल से सोल्व करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पुट x इक्वल्स टू 4. सो यहां पे अगर हम x इक्वल्स टू 4 पुट करेंगे देन वी गेट 4 क्यूब, देन वी गेट 4 क्यूब. x की जगह 4 पुट किया माइनस दिस इज 64 एंड x की जगह 4 पुट किया 4 स्क्वायर माइनस 16. सो दिस इज इक्वल टू 64, 64 माइनस 64 0 अपॉन 16 माइनस 16 सो 0. नाउ अप्लाई डीएल रूल, डीएल रूल अप्लाई करेंगे. सो लिमिट x टेंड्स टू 4. ओके, x क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर बिकॉज अप्लाई करेंगे x टू द पावर n का. ओके, दैट इज n x टू द पावर n माइनस 1. ओके, माइनस 64 इज कांस्टेंट, सो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 अपॉन x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x. अगेन हम यही आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे. माइनस 16 इज कांस्टेंट, सो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0. सो वी विल गेट हियर 3x स्क्वायर. ओके, 3x स्क्वायर अपॉन, ओके देन लिमिट, क्योंकि हम अभी वैल्यू नहीं पुट कर रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 4, 3x स्क्वायर अपॉन 2x. सो एक पावर कैंसिल होके हमारे पास रहेगा लिमिट x टेंड्स टू 4 3 बाई 2x. अब हम x की जगह क्या पुट करेंगे 4. सो 3 बाई 2 इंटू 4, सो वी विल गेट 6. ओके, अगर आपको ये आइडेंटिटी याद नहीं है, ध्यान में नहीं है, रिमेंबर नहीं है, देन आप डीएल रूल से इसको सोल्व कर सकते हैं. तो वैल्यू विल बी 6 फॉर दिस क्वेश्चन. अब हम जो सेकंड क्वेश्चन है उसको देखते हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 27. ओके, 27 x टू द पावर 1 by 3 प्लस 3 x टू द पावर 1 by 3 माइनस 3 अपॉन x माइनस 27. सो देखिए इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 27. अगर हम इसको सोल्व करें, देखिए सपोज दिस इज a, सो a प्लस b एंड a माइनस b, सो दैट विल बी a स्क्वायर. सो ये जो है इसका स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो 3 का स्क्वायर. ओके, अपॉन x minus 27. So now this can be written as limit x tends to 27. Now this can be written as x to the power 2 by 3 minus 3 square. So 3 square, this is 3 square. 3 square means 9 upon x minus 27. Okay. So to apply this identity, यहां हमें 27 बनाना है. ओके, सो अगर यहां पे हमारे पास 27 टू द पावर 2 by 3 ये कन्वर्ट हो जाए, सो ये जो है हमारी ये आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी. सो इसको हम सोल्व करते हैं, देखते हैं. सो दिस कैन बी रिटन एज 27
1/3 into 2. Okay, so equals to 27 to the power 1/3 and whole power 2. Meaning of this is cube root of 27. So 3 से डिवाइड किया 9, 3 से डिवाइड किया 3, 3 से डिवाइड किया 1. सो क्यूब रूट में हमारा 3 नंबर्स का एक पेयर होगा, उसमें से हम एक डिजिट लेंगे. सो वैल्यू ऑफ दिस इज 3 एंड दिस स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू 9. सो दिस 9 कैन बी रिटन एज लाइक दिस. दिस 9 कैन बी रिटन एज लाइक दिस. सो हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 27. ओके, x टू दी पावर 2/3 माइनस 27 to the power 2/3 upon x minus 27. So देखिए, if we compare this with this one, then we get a equals to 27, m equals to 2/3 and n equals to 1. Okay, अगर हम इसको इससे कंपेयर करते हैं, then limit x tends to a. So limit x tends to 27. So a की वैल्यू 27. x to the power 2/3. So x to the power m. So m is 2/3 minus a. So a is 27. Power m means 2/3 upon x minus 27. So power is 1 of x and 27. So this can be written as m by n. So 2/3 divided by 1 means m means 2/3. So 2/3 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 1 से, then we get 2/3. And a means 27 to the power m minus n. So 2/3 minus 1. Now this can be written as 27 to the power, LCM हमारा 3, so minus 1/3. Okay, so this can be written as 2/3 and 1 upon 27 to the power 1/3, because we know that a to the power minus x, this can be written as 1 upon a to the power x. So यहाँ पे 27 to the power नेगेटिव. So यहाँ पे हमने ये आइडेंटिटी अप्लाई की. So 1 अपॉन, ये 1 में चला जाएगा अपॉन में, a to the power x, जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी. So this one. Now this can be written as 2/3 and 27 to the this can be written as 3. Value of this is 3. So this can be written as 2/9. 2/9. सो ये तो हमारा सॉल्यूशन हुआ बाय यूज ऑफ दिस आइडेंटिटी. अब अगर हम इसको डीएल रूल से सोल्व करते हैं, देन देखिए क्या होगा. बाय डीएल रूल सबसे पहले हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे. सो x की जगह हमने 27 पुट किया. सो 27 पावर 1/3 प्लस 3, ओके, इंटू x मीन्स 27 पावर 1/3 माइनस 3 अपॉन x की जगह हमने 27 माइनस 27. सो देखिए, दिस इज इक्वल टू 3. सो 3 प्लस 3 दैट इज 6. ओके, दैट इज 3 प्लस 3 6. एंड दिस इज देखिए 3 माइनस 3, सो इंटू 0 अपॉन 0. सो 6 इंटू 0, 0/0. ओके, सो ये रिजल्ट हमें क्या मिला, 0/0. सो नाउ अप्लाई डीएल रूल. Apply DL rule. It can be written as limit x tends to 27. Okay. अब हम न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर का क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे. सो दिस वैल्यू देखिए यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई में है. सो दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज, ओके, पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो लिमिट x tends to 27. So a plus b and a minus b. So x to the power 2/3 minus 3 का स्क्वायर दैट कैन बी रिटन एज 9. सो इनको हम सोल्व करें. सो ये वैल्यू अपॉन x माइनस 27. अब हम यहां अप्लाई करेंगे, ओके, डीएल रूल. सो यू कैन से लिमिट x टेंड्स टू 27 x to the power 2/3. So since d over dx x to the power n, that is n x to the power n minus 1. So differentiation of x to the power 2/3, that is 2/3 and x to the power 2/3 minus 1. So you can say 2/3 x to the power 2/3 minus 1. Okay, ये हमारा पावर में है. माइनस 9 is constant, so constant का डिफरेंशिएशन 0 अपॉन x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 27 constant, so constant का डिफरेंशिएशन 27 is constant, so differentiation will be 0.
Now this can be written as limit x tends to 27. देखिए 1 माइनस 0 मीन्स 1, सो 1 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो सेम वैल्यू मिलेगी. नाउ दिस इज माइनस 0, सो अगर कोई वैल्यू उसमें से 0 माइनस होगा देन वी गेट दी सेम वैल्यू. सो यहां हमें मिलेगा 2/3 x टू दी पावर, यहां हमारे पास 3 एंड -1/3. So you can say this is equal to limit x tends to 27 2/3 into 1 upon x to the power 1 upon x to the power 1/3, because नेगेटिव पावर है डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी. नाउ पुट x equals to 27, so you will get 2/3 into 1 upon 27 to the power 1/3. So 2/3 into 1/3 that is 2/9. So ये हमारा डीएल रूल से इसका सॉल्यूशन होगा. अब हम क्वेश्चन जो हमारा थर्ड है उसको सोल्व करेंगे. देखिए अगर हम ये आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं तो इसको थोड़ा चेंज करना होगा. देन थर्ड इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड फोर्थ भी उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है. सो देखिए क्वेश्चन थर्ड एंड फोर्थ टू क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट. So question number 3, that is limit, okay, x tends to 0, 1 plus x to the power 6 minus 1, so -1 upon 1 plus x का whole square minus 1. So देखिए if we compare this identity with this one, so यहां पे हमारे पास सिर्फ सिंगल x है एंड x की पावर m, ना कोई मल्टीप्लाई है ना कोई एडिशन है, x टू दी पावर है. बट यहां हमारे पास x के साथ में +1 है और उसका होल पावर है. सो देखिए क्या होगा अगर मैं इसमें चेंज करूं, लेट ओके 1 प्लस x इक्वल्स टू y, देन दिस कैन बी रिटन एज y टू दी पावर 6 -1 अपॉन 1 प्लस x इज y, सो y स्क्वायर -1. ओके, जब ये हमारा फंक्शन, दिस फंक्शन हमारा y में कन्वर्ट हो गया, देन जो लिमिट है वो भी हमारी किस में कन्वर्ट होगी, y में ही कन्वर्ट होगी. सो लिमिट ये जो x, सो यहां से हमें मिलेगा देन x इक्वल्स टू y -1. सो यहां हम लिखेंगे y -1 टेंस टू 0. ओके, then x equals to, if 1 plus x equals to y, then x equals to y minus 1. So इस x की जगह मैंने पुट कर दिया y minus 1 tends to 0. Now this can be written as limit y, अब ये नेगेटिव 1 है, साइड चेंज होगा, then y tends to साइड चेंज होके +1 में कन्वर्ट हो गया, and y6 minus this one can be written as y6, this one can be written as 1 to the power 6 and y square minus 1 square. This one can be written as 1 square. Now this is similar to this one. Okay, यहां पे हमारे पास वेरिएबल x है, यहां पे हमारे पास वेरिएबल y है. सो सॉल्यूशन ऑफ दिस इज, यहां पे देखिए a की वैल्यू 1, m की वैल्यू 6 एंड वैल्यू ऑफ n इज 2. सो m by n means 6/2 a means 1 to the power m minus n. So this can be written as 6/2, that is 3. And 1 to the power 6 minus 4, 6 minus 2 that is 4. So 1 to the power 4 that is 1. So 1 into 3 we get 3. So ये हमारा सॉल्यूशन होगा this one. अगर हम यहां पे DL रूल अप्लाई करते हैं देन देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 plus x to the power 6 minus 1 upon 1, okay, plus x and whole square minus 1. So अगर मैं यहां पे x की जगह 0 पुट करता हूं देन 1 plus 0 6 minus 1 upon 1 plus 0 whole square minus 1. So 1 plus 0 1 to the power 6 is 1, 1 minus 1 0, 1 plus 0 1 square, 1 minus 1, so 0/0. So apply okay DL rule अगर हम अप्लाई करें then we get limit x tends to 0 and differentiation of this. So differentiation of this देखिए 1 plus, यहां पे 1 plus x to the power 6, so 6 and 1 plus x to the power 6 minus 1. 6 minus 1 means 5 into differentiation of this one. 1 का differentiation 0 and x का differentiation 1. So 0 plus 1 that is 1.
अब 1 आप मल्टीप्लाई करो चाहे रहने दो, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 1 जो कि क्या होगा 0 अपॉन, सिमिलरली इसको हम करेंगे देन 2 1 प्लस एक्स, ओके, एंड माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 0. सो दिस कैन बी रिटन एज लिमिट x टेंड्स टू 0 6, ओके, एंड यहां पे 1 प्लस, ओके देखिए 6/2 दैट इज 3 एंड 1 प्लस एक्स टू द पावर 5 एंड 1 प्लस एक्स टू द पावर 1. सो यहां हमारे पास 1 प्लस एक्स टू द पावर 4, ओके. अब हम क्या करेंगे, यहां पे जो x है x की वैल्यू 0 पुट करेंगे. सो 3 इंटू 1 प्लस 0 टू दी पावर 4 दैट इज 3 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 3. सो ये हमारा जो सॉल्यूशन है ये हमारा डीएल रूल से हुआ और ये जो हमारा इस आइडेंटिटी को अप्लाई करते हुए. अब हम डिस्कस करेंगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम इसके जैसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4. तो फोर्थ वन इज लिमिट x टेंड्स टू a, देखिए x प्लस 2, सो x प्लस 2 टू द पावर 5/2, ओके, माइनस a प्लस 2, सो a प्लस 2 इज कांस्टेंट, पावर 5/2 अपॉन x माइनस a. सो देखिए इफ वी कंपेयर दिस विद दिस वन, सो लिमिट x टेंड्स टू a, x टू दी पावर m, बट यहां पे हमारे पास x प्लस 2 है. सो क्या करेंगे, लेट x प्लस 2 इक्वल्स टू y, ओके, देन x इक्वल्स टू y माइनस 2. सो ये हमारे पास चेंज हो जाएगा लिमिट x मीन्स y माइनस 2. सो y माइनस 2 x की जगह क्या पुट किया, y माइनस 2 टेंड्स टू a, सो ये हमारा a, एंड x प्लस 2, सो x प्लस 2 इक्वल्स टू y, सो यहां मैंने पुट किया y टू दी पावर 5/2, ओके, माइनस, अब हमारे पास सिंगल में हो गया बट यहां भी हमारे पास 2 टर्म्स हैं. सो साथ ही हम क्या करेंगे, लेट a प्लस 2, okay, this can be written as, suppose this is equals to a, yeah, you can say b, okay, then a equals to b minus 2, okay. So yahan pe a plus 2, this a plus 2 can be written as b, so b to the power 5/2, and this a can be written as b minus 2, b minus 2, so this a can be written as b minus 2 upon देखिए x minus a, okay, x minus a, so x equals to y minus 2 minus a, so a is b minus 2, so can be written as b plus 2. so ये और ये हमारा कैंसिल हो गया, so y minus 2, और देखिए इधर से भी y minus 2 tends to b minus 2, so minus 2 and minus 2 cancel out, so this is equals to limit y tends to b, limit y tends to b, y to the power 5/2 minus b to the power 5/2 upon y minus b. अब ये जो आइडेंटिटी है, ये जो क्वेश्चन है, ये हमारा इस आइडेंटिटी से मैच हो रहा है, ओके. वैल्यू ऑफ a is b, a की जगह हमारे पास क्वेश्चन में b है, वैल्यू ऑफ m is 5/2 एंड वैल्यू ऑफ n is 1. so this can be written as equals to m by n, so 5/2 divided by 1, this is m upon n, n means 1, so 1 से अगर हम किसी को डिवाइड करते हैं then we get same value, ओके. यहां पे a means यहां पे हमारे पास है b to the power m minus n, so 5/2 minus 1. So this can be written as 5/2 into b to the power 3/2, okay. And what is the value of, देखिए हमारे पास जो आंसर आया वो b की फॉर्म में है, बट हमारे पास जो इनिशियली क्वेश्चन था उसमें कहीं भी b नहीं है. सो यहां पे हम b को रिप्लेस कर देंगे, b is a plus 2, so we get 5/2 a plus 2 to the power 3/2. This is the solution of question number 4. ओके, ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका सॉल्यूशन है.
इसको डीएल रूल से भी हम सोल्व करेंगे, देन सेम वैल्यू हमें मिलेगी। देखिए डीएल रूल से हम इसको सोल्व करते हैं। सो डीएल रूल से अगर मैं यहां पे a पुट करता हूं, देन देखिए x टेंस टू a पुट करता हूं, सो a प्लस टू पावर सेम है, सो न्यूमिनेटर मेरे पास 0 एंड डिनोमिनेटर भी 0। तो यहां से हम डायरेक्ट अप्लाई डीएल रूल अप्लाई करते हैं, देन वी गेट इक्वल्स टू, इसका डिफरेंशिएशन होगा, देन x टू दी पावर m, सो 5/2 n x की जगह हमारे पास है x प्लस टू पावर m माइनस 1, ओके, एंड अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस टू, सो x का 1 एंड 2 का 0, सो इनटू 1, सो सेम वैल्यू, माइनस दिस इज कांस्टेंट, सो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 अपॉन x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस a मींस कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, सो हियर वी गेट 5/2, ओके, इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a। तो यहां भी हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू a 5/2, ओके, x प्लस 2 power 5/2 minus a, so we get 3/2. Now put x equals to a, so here we get 5/2, x की जगह a पुट कर दिया, then a plus 2 the power 3/2। ये हमारा ये जो क्वेश्चन है इसका डीएल रूल से आंसर है, बोथ आंसर्स आर सेम। अब हम बात करते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको डिस्कस करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, question number 5, that is limit, okay, x tends to minus half 8x cube plus 1 upon 2x plus 1। so देखिए इसको if we want to convert this into this one, so इसमें हमें कुछ चेंजेस करने होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो x टू दी पावर m है उसके साथ यहां कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, बट यहां हमारे पास कोफिशिएंट 8 और कोफिशिएंट 2 है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक दिस कोफिशिएंट आउटसाइड, सो यहां हमने 8 कॉमन लिया, देन वी गेट x क्यूब प्लस 1/8, ओके, अपॉन यहां से हमें 2 कॉमन लेना होगा, देन x प्लस 1/2। नाउ दिस कैन बी रिटन एज लिमिट x टेंड्स टू माइनस हाफ, ये हमारा कैंसिल हो गए 4, 8/4, दिस 8/2 means 4 numerical value। now x cube, okay, plus देखिए 1/8, this 1/8 can be written as 1/2 cube, okay, this can be written as like this। so यहां पे हमें यहां x tends to a means minus half, so यहां मुझे माइनस एंड माइनस 1/2 क्यूब ये लिखना होगा। सो देखिए माइनस, यू कैन से माइनस 1/2 क्यूब, दैट इज माइनस 1/8, और फिर ये नेगेटिव सिंबल यहां, सो ये दोनों नेगेटिव कन्वर्ट हो जाएंगे प्लस में, सो प्लस हाफ अपॉन ये 2 तो यहां आएगा, 8/2 मीन्स 4, ओके, एंड x माइनस माइनस हाफ। सो इफ वी कंपेयर, देन a मीन्स माइनस हाफ, m means 3, n means 1, okay, so ये 4 तो हमारा बाहर की साइड, then m/n means 3/1, and a means minus half to the power m minus 1 means 3 minus 1, so 4 into 3 12 into minus half to the power 3 minus 1 means 2, so this is 12 into 1/4, so this is equal to 3। ये हमारा जो सॉल्यूशन है आंसर होगा बाय अप्लाई दिस आइडेंटिटी, ओके। अगर इस आइडेंटिटी को अप्लाई करते हैं हम यहां तो इस तरीके से सोल्व होगा। अब इसी को हम डीएल रूल से अप्लाई करते हैं, इससे सोल्व करते हैं बाय डीएल रूल। सो देखिए डीएल रूल में आपका क्या होगा, यहां पे अगर आप यहां पे माइनस हाफ पुट करते हैं, देन दिस इज 8 इंटू माइनस 1/8 हो जाएगा, प्लस 1/2 इंटू माइनस हाफ एंड प्लस 1, सो ये हमारा 0/0। नाउ अप्लाई डीएल रूल, डीएल रूल अप्लाई करते हैं, देन लिमिट x टेंड्स टू माइनस हाफ,
नाउ डिफरेंट, ये तो हमारा देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ 8x क्यूब, ओके, सो 8 इज कांस्टेंट, ये तो हमारा बाहर आ जाएगा. नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब, सो ये तो 8 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब इज 3x स्क्वायर. Okay, so this can be written as 8 into 3x square plus 1 कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 अपॉन 2x का डिफरेंशिएशन होगा 2, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा एंड x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 1 मींस प्लस 0. सो दिस कैन बी रिटन एज लिमिट x टेंड्स टू माइनस हाफ. ओके, नाउ 8 3 जा 24, देखिए, सो 24x स्क्वायर अपॉन 2. सो ये हमारा कैंसिल हो गए, लिमिट x टेंड्स टू माइनस हाफ 12x स्क्वायर. नाउ पुट x इक्वल्स टू माइनस हाफ, सो इक्वल्स टू 12 इंटू माइनस हाफ स्क्वायर, सो 12 इंटू 1/4, सो वी गेट 3. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. अब हम बात करते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है उस पे. सो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, देखिए, इफ दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू दिस वन, दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वन. सो देखिए LHS को मैं सोल्व करता हूं. LHS लिमिट x टेंड्स टू 3, ओके, x टू द पावर n माइनस 3 टू द पावर n अपॉन x माइनस 3. सो इसका जो रिजल्ट है दिस विल बी n by 1 and 3 to the power n minus 1, that is 3, okay, and 3 to the power n minus 1. Okay, now अब हमारे पास है RHS. so RHS equals to 108. so हमें क्या करना है, इस 108 में से देखिए पावर एक कुछ कम हो, मींस देखिए इफ अगर मैं 108 है, अगर मैं यहां पे इसकी पावर 2 लिखता हूं, ओके, बाहर जो वैल्यू देखिए सबसे पहले 3, यहां सबसे पहले बिकॉज LHS में मेरे पास दिस फॉर्म है, सो वी हैव टू कन्वर्ट RHS इनटू सिमिलर. सो सबसे पहले 3 लिखा. अब मैं यहां जो भी मल्टीप्लाई करता हूं, सपोज मैंने 1 मल्टीप्लाई किया 1, देन पावर होगी 1 माइनस 1 बिकॉज n इज 1, सो 1 माइनस 1, सो दिस इज इक्वल टू 1. ओके, 3 टू द पावर 0 मींस 1, 1 into 1 1 मींस ये जो फॉर्म है इसको ऐसे नहीं लिखा जा सकता. देन मैं यहां 3 लिखूंगा, ओके, और यहां पे मैं लिखूंगा 2, देन यहां पे 2 माइनस 1, अगेन यहां पे 3 टू द पावर 3 इंटू 2, सो वी गेट 6. सो मींस ये ऐसे भी नहीं होगा. देन मैं 3 और यहां पे लिखूंगा आउटसाइड 3 और यहां लिखूंगा 3 माइनस 1, सो 3 इंटू 3 टू द पावर 3 माइनस 1 मींस 2. So 3 to the power 2, that is 9, so 27 means ये भी नहीं हुआ. ओके, देन मैं यहां 3 और बाहर की साइड यहां लिखूंगा 4 और यहां 4 माइनस 1, so this is equals to 4 into 3 to the power 3, that is 27. so 4 7s are 28, carry 2, 4 2s are 8 and 10, 104. so this RHS can be written as 4 into 3 to the power 4 minus 1. Okay, now these two values are same. These two values are same. So compare RHS and compare LHS and RHS. अगर LHS और RHS को हम कंपेयर करें, so देखिए n means 4, 3 to the power n minus 1 means 4 minus 1. So we get, if we compare, then we get n equals to 4. so जो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है उसमें जो n है, n की वैल्यू क्या होगी 4. अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, उसको देखते हैं. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज इफ दिस वन, सो LHS लेते हैं, टेक LHS. so limit x tends to a x cube minus a cube upon x minus a, so x minus a, so this can be written as 3 by 1 a to the power 3 minus 1, so 3a square.
ओके, ये आइडेंटिटी हमने अप्लाई किया है। हियर वैल्यू ऑफ n इज 1, वैल्यू ऑफ n इज 1, सो m by n means 3/1. Okay, equals to this one. So now RHS. So RHS is the limit x tends to 1 and x to the power 4 minus 1 upon x minus 1. Okay, so this can be written as a limit x tends to 1, x to the power 4 minus 1 to the power 4 upon x minus 1. So यहाँ पे 4/1, 1 to the power 4 minus 1. So 4 minus 1 that is 3, 4 minus 1 that is 3. So 1 to the power 3 is 1, so equals to 4. So since hence you can say 3a square equals to 4. Okay, so a square equals to 4/3. So a equals to root of plus minus, okay, 4/3, that is plus minus root of 4 is 2/√3. So this is the solution of question number 7. Means question 7 is if limit x tends to a, this one equals to this one, then find all possible values of a. So there are two possible values of a. First one is 2/√3, first one is 2/√3 and second one is minus 2/√3. So these are two possible values of a for these questions. So यहाँ पे आज हमने जो है, जो हमारी फर्स्ट जो आइडेंटिटी थी उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन किए थे बाय यूज ऑफ आइडेंटिटी और बाय यूज ऑफ डीएल ग्रुप. जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम कुछ और आइडेंटिटीज को एक्सप्लेन करेंगे, उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच.